So hello everyone, today we are going to discuss the chapter our environment or environment. Okay, so this is a NCERT chapter 1 class 7. So we are going to discuss here. In first page there is a story related to the environment, but we are not going to discuss it. We are coming to our main point, which is component of environment, biotic, abiotic, and many more topics are there. Okay, so first of all we should know what is environment. सो जो पीपल, प्लेस, एनिमल, नेचर, ये सब इस सराउंडिंग में सर्वाइव कर रहे हों, रह रहे हों, वही मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं. ओके, पीपल, प्लेस एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंट. नाउ we have know that what is environment. There are also some components of environment, which that is human made environment, natural environment and human environment. So in human made, parks, bridges, roads, industries and houses, many more things will comes in human made environment. Why? Because these all things is made by humans, so it will come in human made environment. Now we are going to discuss that natural environment. So air, water, land, these all will comes in natural environment. Why? Because this we get from nature, so it will be natural environment. Now human environment, individual, religion, educational, community, family, these all will comes in human. Individual means I. Religion means the dharma which we used to follow, means जो धर्म हम follow करते हों. एजुकेशनल मीन्स जैसी हम एजुकेशन ले रहे हों. कम्युनिटी मीन्स सेपरेट फैमिलीज़ टुगेदर मेक वन कम्युनिटी. अलग अलग फैमिलीज़ एक मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं. Then family means our single family. Okay, so now we are going to discuss the natural environment. So natural environments are also of two types, which is biotic and abiotic. In biotic only the living word of organism are there, मीन्स जो लिविंग थिंग्स हों, जैसे लिविंग वर्ड जिनकी हो वो आएंगे बायोटिक में. जैसे प्लांट्स और एनिमल्स आर लिविंग, सो दे विल कम्स इन बायोटिक. एंड इन abiotic the word of non living elements will come, मीन्स जो जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हों, नॉन लिविंग थिंग्स हों, वो हमारे abiotic में आएंगे. जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, पार्क्स हो गया, ये सब हमारे abiotic में आएंगे. नाउ as I have told you that natural environment is land, water, air, plants and animal comprise the natural environment. So we can also classify it into 4 groups, which is lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. So I hope you all have heard these names in previous class also. So we are going to discuss it in here also. So first is lithosphere. इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ये एक सॉलिड क्रस्ट होती है, मीन्स एक सॉलिड लेयर होती है और सबसे टॉप होती है अर्थ की, और बहुत ही हार्ड भी होती है. ओके, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो कि रॉक्स से बनती है, मिनरल्स से बनती है और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से भी ये बनी हुई होती है. ओके, it is also the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. ये यहाँ पे हमें फॉरेस्ट भी मिलेंगे, ग्रास लैंड भी मिलेंगे, लैंड फॉर एग्रीकल्चर्स भी मिलेंगे, और ह्यूमन के सेटलमेंट्स के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड हो सकती हैं. कौन कौन सी? जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सब हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं. फिर इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. यहाँ पे मिनरल वेल्थ की भी बहुत ही अच्छी सी डिपॉजिट होती है. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द हाइड्रोस्फीयर. So the domain of water is referred to as hydrosphere, means water bodies को ही हम hydrosphere कहते हैं. It comprise various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas and oceans. Means as I have told you that मैंने बताया कि रिवर्स, लेक्स, ये सब हमारे वाटर बॉडीज़ में आते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. बस आपको यही समझना है कि ऑल वाटर बॉडीज़ आर हाइड्रोस्फीयर. नाउ एटमॉस्फेयर, इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? एक ये बहुत ही थिन लेयर होती है जहाँ पे एयर अर्थ को सराउंड करती है. एयर अर्थ के चारों ओर रहती है, और किस वजह से रहती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एयर अर्थ के चारों ओर रहती है.
So you have heard that Thal Sena, Jal Sena, Vayu Sena. So these all are lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Lithosphere means थल सेना मीन्स जो ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है. हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल सेना जो कि पानी में रहते हैं, चलते हैं. और एटमॉस्फेयर मीन्स वायु सेना जो वायु में चलते हैं, ठीक है. एज यू हैव हर्ड एयरफोर्स और ये सब, ठीक है, नेवी, ये सब आएंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में, ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बायोस्फीयर. So plant and animal kingdom together make a biosphere or living world. Means plants plus animals will together, when they will come together and make a living condition or survival facilities, they are known as biosphere. Okay, it is, we can also say it's a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support the life. मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि लैंड, वाटर, एयर जहाँ पे इंटरेक्ट हों, एक दूसरे से मिलें और एक लिविंग कंडीशन बनाए, लिविंग वर्ल्ड बनाए, जिससे हम इस लाइफ में रह सकें, ठीक है. फिर नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी आर अनदर पॉइंट विच इज़ इकोसिस्टम. So it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other. मीन्स ये एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, साथ में रहते हैं, एक लिविंग कंडीशन बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ बार्टर सिस्टम. सो इट्स अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. मीन्स ये एक तरह का ऐसा ट्रेड है जिसमें हम बिना मनी के यूज़ करके हम एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. इन प्रीवियस टाइम, जैसा कि आप सबने पहले समय में सुना ही होगा कि पहले समय में तो पैसे होते नहीं थे, देयर वर नो मनी. So if people want to exchange their goods, they used to exchange, means how they will exchange. लाइक आई वॉन्ट ऑरेंज, मुझे ऑरेंज चाहिए और दूसरे को चाहिए बनाना. तो अगर मेरे पास बनाना हो, उसके पास ऑरेंज हो, तो मैं अपना बनाना उसे दे दूँगी और वो अपना ऑरेंज मुझे दे देगा. तो इससे हम दोनों के गुड्स एक्सचेंज हो जाते थे और जिसकी हमें जैसे नीड रहती थी हमें मिल जाता था. सो दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द बार्टर सिस्टम. ओके. And the last and main point is that on 5th June every year the World Environment Day is celebrated. Means हर साल 5 जून को World Environment Day सेलिब्रेट होता है. ये सब तो हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं, बट हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें इनकी डेट याद रखनी चाहिए. दैट ऑन 5th June every year World Environment Day is celebrated. So our chapter is completed. Now next is our exercise of this, but we will discuss in another video. So thank you.